वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन टुडे सीपीटी क्लास। हम बात कर रहे हैं फेमिनिज्म के बारे में। पिछले लेक्चर में, पिछले से पिछले भी लेक्चर्स में फर्स्ट वेव के बारे में हमने आपसे बात किया था। थोड़ा सा बड़ा विषय है, इसलिए थोड़ा सा विस्तार में जाना पड़ता है। फर्स्ट वेव के बारे में मैंने आपको जो जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी आपको दिया। अब जब सेकेंड वेव के बारे में हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म दैट स्टार्टेड फ्रॉम 1960s ऑनवर्ड एंड इट कंटिन्यूड अप टिल वी कैन से अप टिल द ईयर 1990। 1960 से ये दूसरा चरण आरंभ हुआ महिलावाद का और लगभग ये 1990 तक ये चलता रहा। ये जो सेकेंड जो वेव आई फेमिनिज्म की, it was basically following the first wave. First wave feminism में whatever the drawbacks were perceived during the first wave, they were sought to be rectified, they were sought to be discussed during this second wave. और हमने आपको ये बताया था कि first wave was basically as a matter of criticism against the first wave of feminism. It was basically the elite women of the society, the white women of the society that were, you can say, that were in the center stage of the discussion or all the political limelight. जो श्वेत महिलाएं थीं, जो अभिजन महिलाएं थीं पाश्चात्य देशों में, उन्हीं लोगों के अधिकारों के संदर्भ में बात हो रही थी। In fact, they were the ones who were rooting for greater liberation, who were demanding for more concessions or for, you can say, for the end of oppression against women. So the lead in that direction for the women's liberation, you can say, the fight against women oppression, that was being led by the white women, by the elite women of those societies. Those societies means the American society or the English society or the West European countries. तो ये काफ़ी हद तक लेकिन एक बड़ा commendable था. It was really appreciable on their part. All the women who participated during the first wave of feminism, they really deserve compliments and appreciation of one and all, because they were the ones who in fact initiated the process of speaking against the oppression of the society, है ना। तो कम से कम ये उनकी एक बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन आलोचना के संदर्भ में ये उनके विषय में मुख्य आलोचना थी, क्योंकि आलोचना ये थी कि उन्होंने मूल रूप से अभिजन महिलाओं के विषय में ही विचार किया, उनके ही अधिकारों को उन्होंने अधिक महत्व दिया। ऑल विमेन दैट वे दे वर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, यानी महिलाओं के संदर्भ में भी बहुत प्रकार के, आप कह सकते हैं, कैटेगराइजेशन किए जा सकते हैं। बहुत प्रकार की, आप कह लीजिए कि ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पर बहुत प्रकार की महिलाएं होती, इस सेंस में कि जैसे हमने कहा वाइट वुमेन थी, एलीट वुमेन थी। सो दैट मीन्स द ब्लैक वुमेन दे वर नॉट इन पिक्चर, द एशियाटिक वुमेन दे वर नॉट देयर। सो दैट वे, though it was a very commendable movement during the first wave, still it lacked, many, you can say, many issues that could have been brought up during that first stage, but unfortunately they were not there, and therefore the second wave was initiated from 1960. तो 1960 के बाद से जो second wave आई, जैसे हमने कहा, that was basically following the first wave, and it sought to undo the shortcomings or the drawbacks of the first wave. जो पहला चरण था महिलावाद का, उससे संबंधित जो कमियां थीं, जो दोष थे, उसको दूर करने का प्रयास किया गया। Now just to tell you that the second wave basically was influenced by the civil rights movement that was there in America. America witnessed the civil rights movement during the 1960s, और साथ ही साथ जो उसके बाद 1960s के अंत तक जो वियतनाम वॉर शुरू हो गया था। सो अगेन it was considered to be as an imperialistic war. The Vietnam War was not,
looked upon by very favorably by the people in America and elsewhere. It was considered to be as you can say, the aggression of the mighty America against a small country like Vietnam. So all these movements also, they brought into light the condition of women that they were confronted with. तो विशेष रूप से जो 1960 में सिविल राइट्स मूवमेंट चला था अमेरिका में, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव था. और इस मूवमेंट में द ब्लैक वुमेन, दे वर इन द फोरफ्रंट ऑफ द स्ट्रगल. तो जो अश्वेत महिलाएं थी, जो अफ्रीकन जो वुमेन थी, हु वर नाउ सेटल्ड इन अमेरिका, दे वर now they were leading the battle against the male supremacy or the male domination. तो सेकेंड वेव के पीछे ये कुछ मूल कारण थे. और साथ साथ ये भी कारण था, बिकॉज ये भी कारण था कि इट वॉज बाय एंड लार्ज considered that the first wave was not very complete one. It was not all comprehensive, it was not all inclusive. So therefore the defects of that first wave was sought to be rectified in the second wave, है ना. Now the second wave, जैसे हमने अभी भी बताया आपको, it was to a great extent you can say carried on a very powerful scale. It was really what should be said, that many stalwarts of that time came into the arena to fight for the women's rights. और यहाँ पर दो नाम आपको बड़े महत्वपूर्ण जानने पड़ेंगे, और वो ये जो मेन जो प्रमुख नाम है, एक तो नाम है कैरोल हैनिश. कैरोल हैनिश, CAROL, कैरोल हैनिश, HANISCH, कैरोल हैनिश, है ना. शी वॉज यू कैन से अ विमेन लीडर इन अमेरिका. और कैरोल हैनिश का ये सिविल राइट्स मूवमेंट से, जैसे हमने कहा, शी वॉज एसोसिएटेड विद द सिविल राइट्स मूवमेंट इन अमेरिका. एंड शी रोट अ बुक, अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, और उसका नाम कहता है द पर्सनल इज पॉलिटिकल. द पर्सनल इज पॉलिटिकल, it was a very important book, and it also became a slogan during the second wave that personal is political. Personal is political का मतलब है जो व्यक्तिगत है वही राजनीतिक है, जो व्यक्तिगत है वही राजनीतिक है, इसका तात्पर्य है. तो पहले नाम जान लीजिए कि कैरोल हैनिश, she was a black American women leader who pioneered or who gave a leadership to the women's liberation struggle in America during the 1960s. और ये जो इनकी पुस्तक आई थी, that was written in 1969. ये 1969 की ये किताब है. तो ये साफ ये शो कर रही है कि that this was the period of the second wave of feminism in America. और एक दूसरा नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, that is बेटी फ्राइडन. बेटी फ्राइडन, BETTY, बेटी फ्राइडन, FRIEDAN, फ्राइडन. ये बेटी फ्राइडन थी. शी वॉज ऑल्सो एन अमेरिकन, और इनकी पुस्तक का नाम है द फेमिनिन मिस्टिक. द फेमिनिन मिस्टिक, फेमिन नहीं है, जो फेमिनिज्म होता है उसी से वर्ड बनता है फेमिनिन. स्पेलिंग नोट कर लीजिए, FEMININE, FEMININE, फेमिनिन मिस्टिक, MYSTIQUE, फेमिनिन मिस्टिक, है ना. फेमिनिन मिस्टिक, दिस बुक अपीयर्ड इन द ईयर 1963. तो यानी एक प्रकार से 1963 में बेटी फ्राइडन की पहले आई पुस्तक, और कैरोल हैनिश की कुछ 6 साल बाद आई इन द ईयर 1969, दैट पर्सनल इज पॉलिटिकल. नाउ बोथ दीज बुक्स वेर वेरी पायनियरिंग, और दे वर वेरी रेडिकल इन नेचर ऑल्सो, है ना. ये बड़ी क्रांतिकारी पुस्तकें थी. दोनों पुस्तकें थी, बड़ी क्रांतिकारी थी, बड़ी यू कैन से बड़ी रेडिकल थी. और दे sought to stir the women's minds, they sought to activate the women's minds about the kind of oppression, about the kind of domination they were subjected to by patriarchy and by male domination. इन्होंने दो बड़े प्रमुख मुद्दे उठाए कि
कि जो पेट्रियार्की है और जो मेल डोमिनेशन है इन द सोसाइटी, दैट वाज स्टिल देयर इन अबंडेंस इन लार्ज मेजर्स। अर्थात पाश्चात्य देशों में और अमेरिका में भी जो पेट्रियार्कल जो एटीट्यूड था, अर्थात जो आप कह लिए कि पुरुष प्रधान, पेट्रियार्कल का मतलब है पुरुष प्रधान मानसिकता जो थी, यस दैट मेन आर एवरीथिंग, मनुष्य पुरुष से ही सब कुछ समाज चलता है, सब कुछ पुरुषों से ही सारा गौरव प्राप्त होता है समाज को, ये जो मानसिकता है उसको इसने चैलेंज किया, बेटी फ्राइडन ने भी और पर्सनल इस पॉलिटिकल दोनों ने। Now first coming to Betty Friedan, चूंकि Betty Friedan is first, I mean that she wrote her book in 1963, therefore let us discuss her first in short, है ना। तो बेटी फ्राइडन की जो फेमिनिन मिस्टिक है उसने उस बात को उठाया कि जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, एंड अमेरिका वॉज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी अकॉर्डिंग टू हर व्यू, उसके विचारों के अनुसार अमेरिका क्या है, एक पुरुष प्रधान समाज है, एक पितृ प्रधान समाज है, जहाँ पर पुरुष पूजा एक बड़ा स्थापित नियम है ना। उसने ये कहा कि ऐसे समाजों में एक सामान्य से विचारधारा ये रहती है कि दैट ऑल एडवेंचरस वर्क्स, दैट ऑल वर्क्स ऑफ क्रिएटिविटी, दैट ऑल वर्क्स ऑफ नॉवेल्टी, दे बिलोंग टू द डोमेन ऑफ मेल्स। अर्थात जितना भी रचनात्मकता के कार्य होते हैं, जितने भी क्रियात्मकता के कार्य होते हैं, रचनात्मक मतलब जो रचना से संबंधित अच्छे जो क्रिएटिविटी, जैसे हमने कहा, नई नई चीज़ों को सोचना, नए नए चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, ऑल दीज थिंग्स दे बिलोंग टू द डोमेन ऑफ मेन। टू ब्रिंग अबाउट डायनेमिज्म इन द सोसाइटी, अगेन इट इज अ मेल डोमेन। समाज में गतिशीलता लाना, समाज में एक प्रकार से जो परिवर्तन आ रहे हैं, दैट ऑल गोज टू द क्रेडिट ऑफ मैन। उसने कहा दिस इज द मेंटालिटी, दिस इज द प्रिवेलिंग एटीट्यूड इन द सोसाइटी। समाज में इसी प्रकार की विचारधारा है कि समाज में जो कुछ हो रहा, परिवर्तन हो रहा है, गतिशीलता है, डायनेमिज्म है, क्रिएटिविटी है, ये सब पुरुषों के हिस्से में। और महिलाओं के हिस्से में क्या है? महिलाओं के हिस्से में घर है, महिलाओं के हिस्से में अपने हस्बैंड्स की लुक आफ्टर करना है, टू केयर फॉर द हस्बैंड्स, टू केयर फॉर द चिल्ड्रेन, जिसे कहते हैं चाइल्ड रियरिंग, या दूसरा एक शब्द होता है बेबी सिटिंग, बच्चों की देखभाल करना, नर्सिंग द चाइल्ड, नर्सिंग द चिल्ड्रेन, नर्सिंग द इन्फेंट्स, टेकिंग केयर ऑफ द हस्बैंड्स। शाम को पति महोदय ऑफिस से आएंगे तो उनको गर्म चाय चाहिए, उनको अच्छा सा स्वादिष्ट सा नाश्ता चाहिए, और बाद में उनको अच्छा भोजन चाहिए। ये कौन करेगा? ये घर की महिला करेगी। और घर की महिला कौन है? उसकी पत्नी है। घर की महिला को और क्या करना है? बच्चों की परवरिश करना है, पालन पोषण करना है, घर की साफ सफाई करना है। बेटी फ्राइडन ने कहा दिस मेंटालिटी इज टू बी चैलेंज्ड। आर women meant to be trapped into the four walls of the house? क्या महिलाओं की क्या स्थिति केवल घर की चार दीवारों तक ही सीमित है? Are women confined only to the four walls of their houses? क्या महिला केवल क्या अपने घर की चार दीवारों में ही कैद होकर रह जाएगी कि उसको हस्बैंड की देखभाल करना हो, उसको अपने बच्चों की देखभाल करना है, घर की साफ सफाई करना है? उसने कहा दिस मेंटालिटी इज रियली किलिंग। यह बहुत ही घातक ये मानसिकता है। उन्होंने कहा जिन लोगों ने इस बात का प्रचार प्रसार किया है कि that the prestige of women lie in the prestige of their husbands, कि महिलाओं का सम्मान तो उनके पुरुषों के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे पिता के साथ जुड़ा हो, चाहे पति के साथ जुड़ा हो, चाहे परिवार में कोई और पुरुष हो, उनके सम्मान के साथ जुड़ा है। उसने कहा दिस इज नथिंग बट दिस इज अ फॉल्स बिलीफ, दिस इज अ फॉल्स बिलीफ। उसने कहा ये तो बहुत ही इट इज अ काइंड ऑफ अ बिग लाई। ये फॉल्स बिलीव है, ये मिथ्या सोच है, फॉल्स बिलीव है। देखिए मार्क्स ने भी
फॉल्स कॉन्शियसनेस के बारे में बात किया था, लेकिन वो दूसरे संदर्भ में बात कर रहा था। वो फिर वहाँ पूंजीवादी और सर्वहारा वर्ग के बारे में बात कर रहा था। यहाँ पर जो फॉल्स एक शब्द आया है, फॉल्स बिलीव्स, फॉल्स नोशंस, ये कहाँ का है? ये उसने कहा ये तो पुरुषों का बनाया एक मिथ्या जाल है, और इस मिथ्या जाल को ऐसे स्थापित कर दिया गया है कि अब मानो वही वास्तविकता है, as if this is the ultimate truth. So Betty Friedan tried to counter this kind of perception, है ना। उसने इस चीज़ को चैलेंज करने का प्रयास किया है कि महिलाओं की जो आइडेंटिटी है वो उसके हस्बैंड्स और चिल्ड्रन से नहीं स्टैब्लिश होती है। द आइडेंटिटी ऑफ विमेन इज नॉट स्टैब्लिश थ्रू हर हस्बैंड्स और थ्रू अ चाइल्ड और थ्रू अ चिल्ड्रन। ठीक है, दे आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइव्स, but nevertheless they are not the ultimate. Women have their own personality, they have their own area of domain, they have their own area of performance and contributions, और महिलाओं को उन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, है ना। ये देखिए, जो बेटी फ्राइडन ने इस प्रकार का डिस्कोर्स जो दिया, that really energized the women in America. महिलाओं में एक प्रकार से क्रांति की भावना दौड़ गई। They were really, I mean, wondering about their status when they read Betty Friedan's work. जब बेटी फ्राइडन के वर्क को उन्होंने पढ़ा, उनकी पुस्तक को पढ़ा, द फेमिनिन मिस्टिक, महिलाओं से छुपा रहस्य, है ना, महिलाओं से छुपा रहस्य, द फेमिनिन मिस्टिक, अर्थात महिलावादी रहस्य, जैसे भी आप कह लें, अर्थात ये महिलाओं के लिए बड़ा रहस्यमय प्रश्न बन चुका था उस समय कि महिलाओं को तो घर में ही उनको शांति मिलती है, घर के काम काज करें, घर में अपने मेल मेंबर्स को देखभाल करें, चाहे वो छोटा मेल मेंबर हो चाहे बड़ा हो, इसी में उनको परम सुख है, उसी में उनका परम वैभव भी है। इस बात को, इस नोशन को बेटी फ्राइडन ने चैलेंज किया, और ये कब था? 1963 में, अपनी पुस्तक द फेमिनिन मिस्ट्री के माध्यम से। एंड दिस वाज देयर ड्यूरिंग द सेकेंड वेव। और इसलिए उसने क्या किया? उसने कहा ये जो पैट्रियार्की है, ये जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, ये उसी का प्रतिफल है। दिस काइंड ऑफ डिस्कोर्स इज बिल्ट, इट इज कंस्ट्रक्टेड इन सच अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। सो शी गेव अ कॉल टू कम आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ पैट्रियार्कल माइंड सेटअप, and one must try to build a world for itself, not based on this patriarchal mindset. इस दुनिया से बाहर आइए और अपने लिए अपनी एक अन्य दुनिया बनाइए जहां आपकी अपनी पहचान हो। So this is Betty Friedan. Now next thinker, a very prominent thinker is Carol Hanisch. Is Carol Hanisch, the author of the celebrated work पर्सनल इज पॉलिटिकल। द पर्सनल इज पॉलिटिकल, इसका तात्पर्य है जो व्यक्तिगत है वही राजनीतिक है। अब इसका अर्थ समझ लीजिए। देखिए, कैरल हैनिश, अगेन शी इज यू कैन से अ रेडिकल थिंकर, शी इज अ रिवोल्यूशनरी थिंकर। रेडिकल डज नॉट मीन trying to bring about destruction in the society. Generally, radicalism is associated with something, I mean, of a kind of knee-jerk reaction coming into the society, है ना। क्रांतिकारी कह सकते हैं, रिवोल्यूशनरी कह सकते हैं, लेकिन जब हम रेडिकल जब शब्द का प्रयोग करते हैं, इसका तात्पर्य अतिवादी। लेकिन when this radical word is used in relation to Betty Friedan or Carol Hanisch, then it is not meant to convey that they wanted to bring about some kind of destruction or disturbance or instability in the society. This only means, the term radicalism only means, yes, they wanted to eradicate the deeply entrenched patriarchal mindset in the society, the male domination in the society. और यही उद्देश्य कैरल हैनिश का भी था जब उसे पर्सनल इज पॉलिटिकल। अब यहाँ इसको शब्द समझ लीजिए, व्हाट इज पर्सनल। उसने कहा पर्सनल से तात्पर्य होता है व्यक्तिगत, और पॉलिटिकल का मतलब है राजनीतिक। कैरल ने कहा कि देखिए, नॉर्मली
a dividing line is drawn between personal and political. The normal trend is that personal is personal and political is political. Political means something public and personal is something very close to our heart, that is not public, है ना. व्यक्तिगत ही राजनीतिक है, तो जो व्यक्तिगत है वो हम तक रहेगा, और राजनीतिक जो है, जो वो राजनीतिक से तात्पर्य है वो सार्वजनिक है. इसलिए दोनों में एक विभेद है, दोनों में एक विभाजन रेखा है. कैरल हनिश ने कहा ये विभाजन रेखा सामान्य रूप से समाज के द्वारा स्वीकार करी जाती है कि व्यक्तिगत में और सार्वजनिक में एक विभाजन रेखा होती है. दोनों को एक साथ मिक्सअप नहीं किया जा सकता. लेकिन कैरल हनिश ने इस मानसिकता को तोड़ने का प्रयास किया. उसने कहा ये तो भाई बहुत आपने अच्छी बात कह दी कि आप सारे निर्णय ये पुरुष समाज लेता है. ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, बाय द मेल ब्यूरोक्रेट्स और द मेल पॉलिटिशियंस हु आर सिटिंग इन पावर. दे आर टेकिंग डिसीजंस अबाउट अस, अबाउट विमेन, कि महिलाओं के लिए क्या क्या पॉलिसीज होनी चाहिए. और कहते हैं वो ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं विच पुशेस us more into the personal domains. वो इस प्रकार की नीतियां बना रहे हैं जिससे हम अपने घर में और सीमित होकर रह जाएं. Hardly there are any welcoming policies that are sought to be aimed in bringing out women out of the domains from their houses to the public sphere. महिलाओं को घर से बाहर निकालकर उनको सार्वजनिक स्थलों पर सम्मान देने की बातें या नीतियां तो कहीं दिखती ही नहीं है. उन्होंने कहा जो पर्सनल इश्यूज हैं महिलाओं के, जैसे उन्होंने कहा चाइल्ड रियरिंग, है ना, बच्चों का देखभाल, बच्चों के पालन पोषण, यानी और क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस, है ना, महिलाओं के साथ उत्पीड़न नहीं होना चाहिए. Housewives should be taken care of by the husbands. They should be given respect. They should be given proper nutrition and diet. Their standard of health and living should be appropriate, should be good. Their surroundings should be encouraging. उन्होंने कहा ये सारे पर्सनल इश्यूज तो है ना उसके, but these personal issues are being encashed by the politicians who are there sitting in power. जो सारे राजनेता हैं जो सत्ता में आसीन हैं, वो इसी बात को और बढ़ावा दे रहे हैं कि बच्चों का पालन पोषण अच्छे से होना चाहिए, महिलाओं को और सुविधा मिलनी चाहिए, महिलाओं को खान पान का स्तर अच्छा होना चाहिए. यानी आप महिला को और अच्छा घरेलू वातावरण तो आप दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, लेकिन क्या आप महिलाओं को घर से बाहर निकालने की कोई योजना भी बनाई है? You are providing everything to the domestic women by way of better nutrition, by way of better health standards, by way of better living, और भी बहुत सारी चीजें. लेकिन जो सरकारें हैं, गवर्नमेंट्स हैं, they are not doing enough to bring women into the power structures. They are not doing any worthwhile thing to make women empowered. तो women empowerment की जो बात है वो that is not there. इसीलिए कैरल हनिश ने कहा कि that now the time has come for women's liberation. अब समय आ गया कि महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए हमें आवाज उठाना होगा. आप महिला को और अच्छा तो आप सामान दे रहे हो, घर के अंदर आराम से सोते रहो, घर में खूब खाओ पियो, मोटे हो जाओ, बच्चों की देखभाल करो, हस्बैंड्स को देखो, अच्छा भोजन बनाओ, खुद भी खाओ, उनको भी खिलाओ. बट दिस इज नॉट द लाइफ. शी सेड दिस इज नॉट द कंप्लीट लाइफ, दिस इज नॉट द सेटिस्फैक्शन ऑफ द लाइफ. और उसने कहा कि women also ultimately need to come out of their homes. Unless they are out of their houses, unless they are there in the public domain, unless they are seated in the political or the bureaucratic structures, जब तक उनको राजनीतिक और लोक सेवकों के भूमिका में उनको स्थापित ना कर दिया जाए,
जब तक उनको सार्वजनिक स्थलों पर या सार्वजनिक आप कह लें कि आप सत्ता में उनको स्थापित ना कर दिया जाए, तब तक महिलाओं का लिबरेशन पॉसिबल नहीं है। देयर लिबरेशन इज नॉट पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल women are brought out of the domains of their houses। उसने इस प्रकार से ये एक बड़ा पावरफुल ये मैसेज देने का प्रयास किया कि अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप इस तरह से बहुत आगे बढ़ेंगे, आपका समाज अच्छा होगा। समाज में कहा कि जो डिससेटिस्फैक्शन है, जो टेंशन्स हैं, द टेंशन्स आर देयर दैट इज देयर इन द हाउसेस। जो घर के अंदर के जो तनाव हैं, जो कष्ट हैं, वो तकलीफ हैं, perhaps they cannot be always taken care of by these worldly measures। आप ये सारी चीज़ें अगर आप हमको दे भी रहे हो, लेकिन जो मानसिक तनाव है, जो मानसिक कष्ट है, वो मानसिक कष्ट ये भौतिक पदार्थ हमको नहीं दे सकते हैं, उनसे मुक्ति नहीं दे सकते हैं। एंड दिस साइकोलॉजिकल और मेंटल सेटिस्फैक्शन could be obtained only by moving out of the houses, है ना। जब तक हमको हमारी पर्सनालिटी के हिसाब से, हमारी योग्यता के हिसाब से हमको काम ना मिले, तब तक हमारे मानसिक कष्ट और क्लेश कम नहीं हो सकते हैं। और इसलिए उसने कहा कि ये जो पैट्रियार्कल जो सोसाइटी है, जो पुरुष प्रधान समाज है, उससे हमें बाहर निकलना, उसके बंधनों को तोड़ना होगा। We will have to break the barriers of the male dominated society। अगर हम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से आगे नहीं निकल सकते हैं तो हमारा एग्जिस्टेंस इज अ बिग जीरो, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। उसने ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात कही, उसने कहा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और उसे इस बात को कहा, उसने कहा ये जो आप हम लोगों को या महिलाओं को के नाम पर जो आप सत्ता में बैठे हैं और महिलाओं का आपको बड़ा समर्थन मिलता है, ये समर्थन वास्तव में एक नकारात्मक समर्थन है। नकारात्मक इन द सेंस कि यूँ तो महिलाएं आपको बड़ा प्रमोट कर रही हैं, दे आर गिविंग लॉट ऑफ सपोर्ट टू यू, बट अल्टीमेटली दिस सपोर्ट इज नॉट गोइंग इनटू अ पॉजिटिव डायरेक्शन। ये जो समर्थन है, ये आपको कोई बड़ा ये हमारे समाज को ये कोई सकारात्मक दिशा में नहीं ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन सारी नीतियों से एक तो आप हमको घर के अंदर ही आपने बैठा के रखा हुआ है, और जो महिलाएं आपको सपोर्ट दे भी रही है, संभवतः इस उम्मीद में देती हैं, आपको समर्थन देती, परहैप्स यू विल टेक केयर ऑफ अस, बट डेफिनेटली यू आर टेकिंग केयर ऑफ अस, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। और उसने इसलिए बार बार ये कहा कि महिलाओं को आगे आने के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसने कहा कि महिला तब तक खुश नहीं हो सकती है, महिला तब तक खुश नहीं हो सकती जब तक वो घर से बाहर नहीं निकलती है। Women, they are not satisfied with their motherly role, with their wifely role, or in any other role that is available within the house। एक घर के अंदर जो महिला को जो भी भूमिका मिली, उससे उसको संतुष्टि नहीं मिल सकती है। और उसने कहा कि विशेष रूप से ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, जो घरेलू प्रताड़ना है, घरेलू जो हिंसा है, उससे तो कतई उसको मुक्ति नहीं मिल सकती है जब तक उसको बाहर निकलने की स्वतंत्रता नहीं होगी। इसलिए उसने कहा कि जो पर्सनल है, अब वो पर्सनल नहीं है, वो क्या है, वो पॉलिटिकल हो गया है। क्योंकि आप हमारे ही पर्सनल इश्यूज को लेकर, आप हमारी पर्सनल एस्पिरेशंस को लेकर आप नीतियाँ बनाते हो, आप राजनीति में बैठकर नीतियाँ बनाते हो। You are formulating policies on our personal issues। पर्सनल इशू क्या है कि बच्चों की कैसे देखभाल होगी, है ना, आपका न्यूट्रिशन कैसा होगा, घर का रहन सहन कैसा होगा। आप इन सारे इशूज को लेकर आप ये जो हमारे पर्सनल इशूज हैं, यू आर क्रिएटिंग लॉज, यू आर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, यू आर इनैक्टिंग प्रोग्राम्स फॉर दैट। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम बना रहे हैं, विभिन्न प्रकार की नीतियाँ बना रहे हैं। लेकिन ये क्या है, ये पॉलिटिकल इशू हो गया। अब ये केवल पर्सनल नहीं रह गया है। पर्सनल तो तब तक होता है जब तक ये केवल हम तक सीमित रहता। नाउ इट इज ऑल द विमेन्स इशूज, दे आर आउट इन द पब्लिक डोमेन। अब तो ये पूरा सार्वजनिक, ये एक सार्वजनिक दायरे में आ चुका है। इसलिए उसने कहा अब समय आ गया है कि अब हमें घर की चार दीवारियों से बाहर निकलना होगा।
और ये जो पुरुष हमारे लिए नीतियाँ बना रहे हैं, वास्तव में ये नीतियाँ हमें स्वयं बनाना चाहिए। इसीलिए उसने कहा विमेन्स लिबरेशन मूवमेंट, महिलाओं का ये स्वतंत्रता आंदोलन है, जो सेकेंड वेव है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट वॉज ओनली ड्यूरिंग दिस सेकेंड वेव that the women's the call for women's liberation was given by these women leaders। ये जो महिला जो नेत्री थी, है ना, इन लोगों ने दूसरे इस चरण में बड़े महत्वपूर्ण इन्होंने भूमिका निभाई है, और इन्होंने महिला मुक्ति आंदोलन की नींव रखी है बड़ी पावरफुल वे में, क्योंकि फर्स्ट जो वेव थी, जो लहर थी, उसने तो केवल पॉलिटिकल राइट्स के बारे में कहा, लेकिन पॉलिटिकल राइट्स तो केवल एक आंशिक ही आप कह लीजिए अधिकार के बारे में बात करेंगे, हालांकि वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था जैसे हमने बार बार कहा। लेकिन यहाँ पर जो सेकंड वेव जो थी, उसमें इनके सोशल इश्यूज़ के बारे में, इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में, कल्चरल इश्यूज़ के बारे में ये बात उठाई गई, चाहे बेटी फ्राइडे ने उठाया हो, चाहे कैरोल हेनिस ने उठाया, और बहुत सारी, केवल ये तो दो ही नाम बताया, अदरवाइज देयर वर सो मेनी other women leaders, है ना, that I mean they were trying to reshape the society। तो जो second जो wave है, that was a call for reshaping the society, for redirecting the society, है ना, उस समाज को एक नए दिशा देने की बात थी, समाज को एक नया स्वरूप देने के बारे में था, है ना। इट वॉज अ कॉल फॉर रीशेपिंग द सोसाइटी, इट वॉज कॉल फॉर रीडायरेक्टिंग द सोसाइटी, इट वॉज अ कॉल फॉर गिविंग अ न्यू डायरेक्शन टू द सोसाइटी, जहाँ पर महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मुद्दों पर खुलकर विचार विमर्श हो। लेकिन ये सारा जितना परिवर्तन आ रहा है, ये अब ये आने की आवश्यकता है। ये केवल महिलाओं के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित नहीं है, अब ये राजनीति का एक अहम हिस्सा हो गया है, क्योंकि ये सारे इश्यूज अब पॉलिटिकल लेवल पर डिबेट किए जा रहे हैं, डिस्कस किए जा रहे हैं। देयरफॉर इट इज नॉट पॉलिटिकल। I hope you will understand what is the meaning of पर्सनल इज पॉलिटिकल, अर्थात व्यक्तिगत ही सार्वजनिक है, व्यक्तिगत ही राजनीतिक है, जो राजनीतिक है वो सार्वजनिक है। तो अब वो दीवार नहीं रह गई है कि जो व्यक्तिगत और सार्वजनिक के मध्य दीवार थी, या व्यक्तिगत और राजनीति के मध्य जो दीवार थी, दैट इज नो मोर देयर, बिकॉज नाउ इट हैज बिकम एन इंक्रीजिंग टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ द मेल पॉलिटिशियंस to frame laws, to frame to enact policies and programs based on our personal issues, है ना। आप हमारे बारे में आप कानून बना रहे हैं, नीतियां बना रहे हैं, कार्यक्रम बना रहे हैं, लेकिन उससे हमारा भला नहीं हो रहा है। आप तो हमें वो कानून, वो नीतियां दे रहे हैं जिसे हम घर में और अंदर दब कर रह जाए, बंद होकर रह जाए। अगर आपको नीतियां बनाना है तो आप हमें घर के बाहर लाइए। गिव अस मोर एम्पावरमेंट, गिव अस मोर स्पेस विदिन द मेल डोमिनेटेड स्ट्रक्चर्स। जो पुरुष प्रधान जो पूरे संरचनाएं हैं, राजनीति है ना, जो ब्यूरोक्रेसी है, आप या पावर स्ट्रक्चर है, सत्ता का जो गलियारा है, आप महिलाओं को उधर और लाने का हमें और स्थान दीजिए, आने का हमें मौका दीजिए, अवसर दीजिए। ओनली देन वी विल बी एबल, वी विल गेट सेटिस्फाइड। इसलिए अब कुछ महिलाओं का कुछ व्यक्तिगत नहीं रहा, सब कुछ सार्वजनिक हो गया। जब आपने कह दिया कि महिलाओं को अच्छे से बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए, घरेलू उनको दायित्वों का अच्छा निर्वहन करना चाहिए, इसलिए हम उनको और ये सुविधाएं दे रहे हैं। तो अब ये कुछ भी व्यक्तिगत नहीं रह गया, इट इज नाउ ऑल इन पॉलिटिकल डोमेन। सो नाउ लेट अस डिसाइड अबाउट व्हाट women should do, what should be done for the women. This should be decided only and only by the women और primarily by the women। ये केवल महिलाओं के द्वारा ही इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वो क्या उनको करना चाहिए, ये उनको आप अधिकार दीजिए, आप क्यों कर रहे हैं। तो इसीलिए उसे कहा विमेन लिबरेशन ये मूवमेंट था, महिला मुक्ति आंदोलन था, ये दूसरी ये जो वेव चली। सो देयरफॉर इन कंक्लूजन वी कैन से दिस वाज वेरी सक्सेसफुल, टू अ ग्रेट एक्सटेंट इट वाज सक्सेसफुल। और इसने महिलाओं को जागृत किया, और इसी को ये कहा भी गया इट वाज अ रेडिकल वेव ऑफ फेमिनिज्म। ये महिलाओं की एक अतिवादी, एक हम कह लें कि एक लहर थी, है ना, जिसे कहते हैं रेडिकल फेमिनिज्म कहा गया, एक अतिवादी महिलावादी ये एक अवधि थी या विचारधारा थी जो इस समय दिया गया। सो इट हैड मेनी बेनिफिट्स, इट स्टर्ड द women's mind, it stirred the whole society, it ignited the minds of the political you can say people who are there, और इस तरह से समाज में
धीरे धीरे परिवर्तन अब आना शुरू हो गया। तो जो पहली जो अवधि में जो कुछ हुआ था, फर्स्ट वेव में हुआ था, उसको कैरी ऑन किया गया सेकेंड वेव में, इसको किया गया, है ना। तो आज की बात हम यहीं पर समाप्त करेंगे, एंड इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी स्पीकिंग मोर अबाउट द थर्ड एंड द फोर्थ वेव। अगले लेक्चर में जो थर्ड वेव आई या फोर्थ वेव आई उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, thank you so much for your kind patience and attention. We meet very soon in my next lecture. Thanks a lot.